ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی، صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ گمنامی کی زندگی گزارنے والے کراچی کے رہائشی عمر کے اس حصے میں بسد اصرار اس بات پر آمادہ ہوئے کہ اپنی زندگی کے تہلکہ خیز گوشوں سے پردہ اٹھائیں۔ ان کا اصل نام کچھ اور ہے، اس داستان میں انہیں جمال کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے سبق ہے جنہیں یہ ملک بغیر کسی جد و جہد کے ملا، جنہوں نے اس ملک کی قدر نہ کی۔ پاک وطن کے جانباز بیٹے کی یہ کہانی کسی بھی سنسنی خیز ناول سے زیادہ دلچسپ ہے۔ پاک وطن کا بہادر بیٹا اس پاک وطن کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے والا محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی۔ وطن زاد۔ ٹرین کو دلی اسٹیشن سے روانہ ہوئے 20 ہی منٹ ہوئے تھے کہ میں اپنا سفری بیگ اٹھائے ایک کمپارٹمنٹ کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ لگ بھگ 10 منٹ کے بعد ٹرین آہستہ ہوئی اور پھر ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رک گئی۔ میں اپنے کمپارٹمنٹ سے اترنے والا واحد مسافر تھا، تاہم پوری ٹرین سے 20-25 افراد اسٹیشن پر اترے تھے۔ پلیٹ فارم کے شروع میں نصب بڑی سی تختی پر ہندی اور انگلش میں فرید آباد لکھا ہوا تھا۔ میں نے ٹرین چلنے سے ذرا پہلے دلی اسٹیشن سے خریدا ہوا ٹکٹ گیٹ پر تعینات ریلوے اہلکار کے حوالے کیا اور باہر نکل آیا۔ شہر بننے کی طرف گامزن ایک سرسبز قصبہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ سامنے کئی تانگے والے مسافروں کو آوازیں دے کر اپنی طرف بلا رہے تھے۔ میں چند دیگر سواروں کے ہمراہ قصبے کے بس اڈے جانے والے ایک تانگے میں سوار ہوا۔ ڈھلتی شام میں دلی کے مقابلے میں وہاں کا موسم زیادہ سرد محسوس ہوا۔ میں نے اونی گلو بند اچھی طرح لپیٹ لیا۔ میرے پہلو والی نشست پر براجمان سکھ بزرگ تو باقاعدہ کمبل میں لپٹے ہوئے تھے۔ تانگا درختوں میں گھری سڑک پر آگے بڑھتا ہوا ایک بڑی سی نہر پر واقع پل پر سے گزرا اور کچھ ہی دیر میں ہمیں ایک بڑے سے بس اڈے پر اتار دیا۔ وہاں کی چہل پہل سے لگ رہا تھا کہ وہاں سے کافی بسیں مختلف شہروں کی طرف روانہ ہوتی ہوں گی۔ میں نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ دلی جانے والی بس لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد روانہ ہوگی، جس کا ٹکٹ بس میں بیٹھنے کے بعد خریدنا ہوگا۔ میں نے اس بس کی شناخت کی اور پھر اڈے پر موجود متعدد دکانوں کا رخ کیا۔ جلد ہی میں ایک ڈربا نما دکان میں نائی کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے اپنے لمبے بال اور قلمیں چھوٹی کرنے کی ہدایت کی۔ اس کی کارکردگی مجھے خاصی مناسب لگی۔ وہاں سے میں عام استعمال کی اشیاء فروخت کرنے والی ایک دکان پر پہنچا اور سفری استعمال کا گول دستے والا ریزر خرید کر ایک پبلک ٹوائلٹ میں جا گھسا۔ چند منٹ کے بعد میں باہر نکلا تو میری گھنی مونچھیں بلیڈ کی نظر ہو چکی تھیں۔ اب میں خود کو خاصا مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ میری شکل اتنی تبدیل ضرور ہو گئی تھی کہ پہلی نظر میں پہچاننا مشکل تھا۔ باقی کا لگ بھگ آدھا گھنٹہ میں نے بس میں ایک عقبی نشست پر قبضہ جمائے گزار دیا۔ اس دوران میں بس نصف سے زائد بھر چکی تھی۔ مسافروں کی زیادہ تعداد حلیے اور بات چیت سے دیہاتی دکھائی دے رہی تھی۔ کھٹارا بس نے لگ بھگ 20 میل کا فاصلہ طے کرنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا دیا۔ ہم دلی میں داخل ہوئے تو شام رات میں بدل چکی تھی۔ میں ایک سائیکل رکشے میں چاندنی چوک پہنچا اور مصروف ریسٹورانٹ میں جا بیٹھا اور کھانا منگوا لیا۔ وہاں سے نکل کر میں نے پیدل جامع مسجد دلی کا رخ کیا اور چائے پینے میں 15-20 منٹ لگا دیے۔ اس کے بعد میں نے کچھ ہی فاصلے پر واقع گولچا سنیما کا رخ کیا۔ یہ شاید کچھ ہی سال پہلے بنا ہوگا کیونکہ میرے گزشتہ دورہ ہندوستان میں یہ یہاں موجود نہیں تھا۔ میں ظہیر شیخ کے رکشے میں اس کے سامنے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اس پر دلیپ کمار اور مینا کماری کی کامیاب پکچر کوہ نور نمائش پذیر تھی۔ میں سنیما کی گلابی عمارت میں داخل ہوا تو احساس ہوا کہ میرا سفری بیگ مجھے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا سکتا ہے، چنانچہ میں نے اس سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ خوش قسمتی سے سنیما کی نئی عمارت کے ٹوائلٹس کے اوپر مجھے ایک ایسی مچان نما جگہ نظر آ گئی جہاں میرا سفری بیگ کسی کو دکھائی نہ دیتا۔ میں نے پاسپورٹ اور رقم وغیرہ اپنی جیبوں میں منتقل کی اور مناسب موقع دیکھ کر کپڑوں سمیت اپنے منتخب کردہ گوشے میں اچھال دیا۔ ٹکٹ گھر پر بہت زیادہ رش نہیں تھا۔ میں نے 2nd کلاس کا ٹکٹ خریدا اور سنیما میں گھس گیا۔ مجھے پکچر دیکھنے میں کچھ زیادہ دلچسپی نہ تھی، جبکہ کہانی بھی انتہائی چالو نکلی۔ تاہم مرکزی اداکاروں کی عمدہ رومانوی اور مزاحیہ اداکاری اور پسندیدہ گلوکاروں محمد رفیع اور لتا کے دلکش گانوں کی بھرمار نے میری دلچسپی برقرار رکھی۔
पिक्चर देखकर मैं बाहर निकला तो रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद सिनेमा के सामने कई हथ रिक्शा, साइकिल रिक्शा और तांगे मौजूद थे। मैं उस वक्त किसी भी शख्स से मुखातिब होना नहीं चाहता था, लेकिन मसला ये था कि इतनी रात गए अच्छा खासा फासला तय करते हुए मैं बआसानी गश्त लगाते पुलिस वालों की नजर में आ सकता था, जबकि वो किसी सवारी पर इतनी तवज्जो न देते। चुनाचे मैंने एक अधेड़ उम्र, छरीरे लेकिन मजबूत बदन के हथ रिक्शा वाले की तरफ कदम बढ़ाया। उसने सवाल पूछा, जी सरकार, कहाँ ले चलूं? लम्हे भर में मुझे उस सवाल के जवाब की पेचीदगी ने परेशान कर दिया। मैं किसी भी कीमत पर बराह रास्त अपनी मंजिल का पता बताकर उसे गवाह नहीं बनाना चाहता था, तो फिर मैं उसे क्या बताऊं? खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर मेरी यादाश्त मदद को आ गई। मैंने कहा, भाई गांधी मैदान ले चलो। मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा था। ये नाम मैंने थाने के करीब ही एक बोर्ड पर हिंदी में लिखा पढ़ा था। रिक्शे वाले ने मजीद कोई बात किए बगैर मुझे रिक्शे में बिठाया और दोनों बम्बू थामकर हमवार रफ्तार से लगभग सुनसान सड़क पर दौड़ने लगा। हम जामे मस्जिद के सामने से गुजरे और फिर आगे जाने के बाद बाएं मुड़े। एक सड़क पर 2 फरलांग फासला तय करके दाएं तरफ जाने वाले रोड पर आ गए। मेरे अंदाजे के मुताबिक अब मेरी मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी। उसी वक्त रिक्शे वाले ने चढ़ी सांसों के दरमियान कहा, भाई मियाँ, ये उल्टे हाथ गांधी मैदान ही चल रहा है, जहाँ उतरना हो बता देना। मैंने कहा, बस थोड़ा आगे और चलें। कोतवाली थाने से लगभग 100 गज पहले मैंने रिक्शे वाले को उसकी उजरत देकर रुखसत कर दिया। जिस जगह मैं उतरा था वहाँ उस वक्त हू का आलम था। लकड़ी के खंभों पर लटके पीले पीले लैंप अजीब सोगवार माहौल पैदा कर रहे थे। मैंने जल्दी से दाएं तरफ गांधी मैदान की हदबंदी पर उगे घने दरख्तों की तरफ कदम बढ़ा दिए। अंधेरे साए में पहुंचकर मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। मेरा आधा काम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन असल आजमाइश तो अभी बाकी थी। कुछ देर इर्द गिर्द का जायजा लेने पर जब मुझे कोई जीरूह दिखाई न दिया तो मैंने लगभग 5 फुट ऊंची दीवार फलांगी और गांधी मैदान में उतर गया। मैं दीवार के साथ साथ दरख्तों के अंदर साए में लगभग टटोलने के अंदाज में थाने की पहलू की दीवार की तरफ बढ़ा। ये 100 गज के करीब फासला तय करने में मुझे 20-25 मिनट लग गए। थाने की बगली दीवार लगभग 7 फुट बुलंद थी, ताहम उस पर खारदार तार या कांच वगैरह नहीं लगाए गए थे। उस दीवार के साथ भी घने दरख्त कतार से उगे हुए थे। मैंने दीवार फलांगने से पहले अंदर का जायजा लेना मुनासिब समझा। मैंने अंदाजे से नीम के एक दरमियानी ऊंचे दरख्त का इंतखाब किया और लश्टम पश्टम इतनी ऊंचाई तक चढ़ गया कि अंदर झांक सकता था। थाने के अंदर बरकी कुमकुमे रोशन थे और तमाम मंजर वाज़े नजर आ रहा था। मुझे वहां से थाने की इमारत के पहलू का हिस्सा दिखाई दे रहा था। अलबत्ता मुझे वहां कोई पुलिस अहलकार दिखाई न दिया। मैं एहतियात से दरख्त से उतरा और दीवार के साथ साथ आगे बढ़ा और अपने अंदाजे के मुताबिक एक और दरख्त पर थोड़ा बुलंदी पर चढ़कर अंदर झांका। मेरा दिल हिजान से तेज तेज धड़कने लगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक सामने नजर आने वाला गलियारा वही था जिसमें हमें कैद किया गया था। उस वक्त वहां मुकम्मल सन्नाटा तारी था। दरख्त के सहारे मैं बआसानी दीवार के ऊपर पहुंच गया। गहरी नजरों से जायजा लेकर ये इत्मीनान कर लेने के बाद कि थाने के अहाते के उस हिस्से में कोई पुलिस अहलकार तैनात नहीं है, मैं बर्फ की सिल जैसी यखबस्ता दीवार से लटक कर थाने में उतर गया और बेआवाज लेकिन तेज कदमों से इमारत के उस गलियारे की तरफ बढ़ा जिसमें मेरे अंदाजे के मुताबिक वो कैद खाना वाक़ था जिसमें जहीर शेख को रखा गया था। गलियारे के कोने पर पहुंचकर मैंने निहायत एहतियात से झांका, लेकिन मुझे फौरन ही पीछे हटना पड़ा। जहीर की कोठी के सामने मुझे एक पुलिस अहलकार की झलक दिखाई दी थी जिसका रुख शायद मेरी ही तरफ था। चंद लम्हों तक गलियारे में कोई रद्द अमल न पाकर मैंने एक बार गलियारे में देखा। वहां रोशन बरकी कुमकुमों की रोशनी में मुझे नजर आया कि स्टूल पर बराजमान जिस संतरी को देखकर मैं चौंका था उसके चेहरे का रुख तो जरूर मेरी तरफ था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और वो दीवार से टेक लगाए गहरी नींद के मजे लूट रहा था। अलबत्ता उसकी राइफल दीवार के सहारे चौकस खड़ी दिखाई दी। तभी मुझे दूसरा संतरी भी नजर आ गया। वो कंबल में लिपटा फर्श पर दराज था। अपनी राइफल शायद उसने पहलू में सुला रखी थी। उन्होंने शायद बारी बारी पहरा देने का तय किया होगा, लेकिन जिसे जागकर ड्यूटी देनी थी वो भी नींद से मात खा गया था। रास्ता साफ पाकर मैं दबे पांव आगे बढ़ा। ऐन उसी वक्त 40-45 उम्र का वो दुबला पतला संतरी कुसमसाया। मैं ठिठक कर अपनी जगह साकित हो गया, लेकिन उसे एक बार फिर गहरी नींद की आगोश में जाते देखकर मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। मैं चंद ही लम्हों में संतरी के सर पर पहुंच गया और निहायत एहतियात से हाथ बढ़ाकर दीवार के सहारे खड़ी राइफल अपने कब्जे में ले ली।
मैं फैसला कर चुका था कि मुझे उसके साथ क्या करना है, लेकिन मैं बिला वजह उसकी जिंदगी खतरे में डालना नहीं चाहता था। मैंने कराची में सिखाई गई तकनीक जहन में दोहराई और फिर निहायत नपे तुले अंदाज में राइफल के बट से उसकी खोपड़ी के एक मखसूस हिस्से पर जरब लगाई। उसने झुरझुरी सी ली और स्टूल से फर्श पर ढह गया। मुझे फौरन ही अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मेरे संभालने के बावजूद लकड़ी का भारी भरकम स्टूल भी उसके साथ ही पुख्ता फर्श पर गिर पड़ा, जिससे अच्छी खासी जोरदार आवाज पैदा हुई, जो इतनी बुलंद थी कि करीब ही महवे ख्वाब दूसरे संतरी को जगा दिया। उसने हड़बड़ा कर कंबल मुंह से हटाया और चुंधियाई हुई नजरों से माहौल का जायजा लिया और फिर वो पूरी तरह हवास में आ गया। सूरत हाल का इदराक करते हुए उसकी नजरें मुझ पर जम गईं। इस असना में मैंने भी उसे पहचान लिया था। वो दिलजीत था, मुझसे हद दर्जे खार खाने वाला रीछ नुमा संतरी। इससे पहले कि वो उठकर अपने पहलू में दीवार के साथ लेटी राइफल की तरफ हाथ बढ़ाता, मैंने हद्दुल इम्कान तेजी से राइफल का सेफ्टी लॉक हटाया और लीवर आगे पीछे करके गोली लोड कर ली। अब वो सेमी ऑटोमेटिक राइफल फायर करने के लिए तैयार थी और उसकी नाल का रुख दिलजीत के सीने की तरफ था। ये देखकर खौफ से उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने उसे हाथ के इशारे से अपनी राइफल से दूर हटने को कहा। उसने बगैर कहे दोनों हाथ सर से ऊपर उठाते हुए मेरे हुक्म की तामील की। इस तमाम अरसे के दौरान उसकी लोमड़ी जैसी आंखें मुसलसल मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। मेरी शबाहत खासी बदल चुकी थी, लेकिन मुझे यकीन था कि उसने मुझे पहचान लिया है। एन उसी वक्त एक धीमी आवाज ने लम्हा भर के लिए मेरी तवज्जो भटका दी। वो जहीर था, जो उस वक्त सलाखों वाले दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। होशियार रहना भैया, ये बहुत मक्कार दरिंदा है, कोई दाव न खेल जाए। मैंने इस बात में गर्दन को जुम्बिश दी। मुझे एहसास था कि वक्त तेजी से फिसल रहा है। किसी वक्त भी कोई मुदाखलत बना बनाया काम बिगाड़ सकती है। मुझे जल्द अज जल्द अपना काम पूरा करना था। मैंने अपने लहजे को हद्दुल इम्कान खूंखार और तहक्कुम भरे लहजे में दिलजीत को हुक्म दिया, चाबी निकालो और कोठरी का ताला खोलो। मेरी बात सुनकर उसने कहा, चाबी? अच्छा, ताली वाह तो दरोगा साहब के पास होवे। जहीर ने नफरत भरे लहजे में उसे ललकारा, बकवास मत कर लानती किरदार। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, इसी के पास है कोठरी की कुंजी। इसने दिन की ड्यूटी वालों से लेकर अपनी ऊपर वाली जेब में रखी थी। मैंने खूनी नजरों से दिलजीत को घूरा, कहा, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, चुपचाप जेब से चाबी निकाल और ताला खोल। उसने इनकार का सोचा जरूर होगा, लेकिन इस दौरान में राइफल मेरे शाने पर टिक चुकी थी और मैंने उसकी छाती निशाने पर रख ली थी। मैंने कहा, ट्रिगर दबाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, चल आगे बढ़। उसने जेब से चाबी निकाली और मरे मरे कदमों से कोठी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस दौरान जहीर 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। उस वक्त वो खासी बेहतर हालत में दिखाई दे रहा था। मेरी नजरें दिलजीत की हर हरकत का बगौर जायजा ले रही थी। मैं किसी बेएहतियाती का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। उसने ताले में चाबी घुमाई और उसे खोलकर कुंडे से निकाल लिया। अचानक वो तेजी से मुड़ा और भारी भरकम ताला पूरी कुव्वत से मेरी तरफ फेंका। उसने बिलाशुबा बहुत मोहलिक वार किया था, लेकिन खुशकिस्मती से मैं पूरी तरह चौकन्ना था। मैं पलक झपकते में झुक गया। ताला एन उस जगह से परवाज करता हुआ गुजरा जहां पहले मेरा सर मौजूद था। ताला मेरे अकब इस्तादा दीवार से टकराया और फर्श पर बेहोश पड़े संतरी के जिस्म पर गिर पड़ा। मेरे साथ साथ जहीर के मुंह से भी दिलजीत के लिए शायान शान कलिमात खारिज हुए। वो शायद मुझ पर झपटने की सोच रहा था, लेकिन मेरी आंखों में लपकते गैज़ो गज़ब के अंगारे देखकर हिम्मत हार गया। मैंने सर्द लहजे में कहा, हराम के पिल्ले, औकात में रह। अब ऐसी कोई हरकत की तो खुद को मुर्दा समझना। इस असना में जहीर कोठड़ी से बाहर आ चुका था। उसने सबसे पहले दिलजीत की राइफल अपने कब्जे में की। उसे फुर्ती से हरकत में देखकर मैंने इत्मीनान की सांस ली। हम दोनों को राइफलें संभाले देखकर दिलजीत की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। अब वो वाज़े तौर पर मायूस दिखाई दे रहा था, ताहम उसने खुद को बेखौफ जाहिर करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हो, दुर्गा साहब थारे। लेकिन जहीर ने एक भारी भरकम गाली से उसकी बात काटते हुए कहा, निमट लेंगे उससे भी, तू हमारे आगे चल। उसका इशारा थाने के अहाते की तरफ था। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या इरादा रखता है, लेकिन दिलजीत ने जैसे ही उसके हुक्म की तामील में हमारी तरफ पीठ करके बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, जहीर का हाथ बिजली की तेजी से हरकत में आया और राइफल का बट भरपूर कुव्वत से उसकी खोपड़ी के अकबी हिस्से से टकराया। मुझे लगा कि मैंने हड्डी टूटने का तड़ाखा भी सुना है। दिलजीत तिवरा कर पुख्ता फर्श पर गिरा। उसकी नाक से गाढ़े खून की तुरली बह रही थी। उसकी मौत का यकीन होने पर मुझे दिल ही दिल में अफसोस हुआ। जहीर की घाग नजरों ने मेरी कैफियत भांप ली थी। वो धीमे लहजे में बोला, मजबूरी है भाई, आपको पहचान गया है। मेरी तो खैर है, आपके लिए बहुत खतरात पैदा हो जाएंगे।
मुझे अपनी बेजा नरम दिली पर झुंझलाहट महसूस हुई। 1-2 मिनट पहले ही उसने मेरी जान लेने की खतरनाक कोशिश की थी और मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात उबल रहे थे। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अब जल्दी से निकल चलो, इससे पहले कि कोई इस तरफ आ जाए। उसने अस्बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, आप चौकन्ना रहें, बस 2 मिनट में चलते हैं। मेरे देखते ही देखते उसने मेरे हाथों बेहोश होने वाले संतरी की वर्दी उतारी। दिलजीत की वर्दी लहू में भीगने की वजह से बेकार हो गई थी। जहीर ने वो वर्दी अपने लिबास के ऊपर ही जैसे तैसे चढ़ा ली और टोपी भी पहन ली। उसने दूसरी टोपी मेरे सर पर चढ़ा दी। बोला, अब बस कंबल लपेट लो। कदरे तजब्जुब के बाद मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। हम दोनों राइफलें ताने मोहतात कदमों से थाने के अहाते की तरफ बढ़े। मैंने एहतियात से बाहर झांका। सख्त सर्दी की रात के तीसरे पहर वहां किसी का नजर आना हैरान कुन होता, लेकिन उसके बावजूद मैंने अच्छी तरह नजरें दौड़ाईं और फिर मुतमईन होकर जहीर को अपने पीछे आने का इशारा किया। हम दोनों ने राइफलें अपने शानों पर लटका ली थीं। मेरा रुख अहाते के उस हिस्से की तरफ था जहां से मैं अंदर उतरा था। जहीर अपनी अबतर जिस्मानी हालत के बावजूद हैरत अंगेज तौर पर अपने बाजुओं के जोर पर दीवार पर चढ़ गया और दोनों राइफलें पकड़कर मुझे भी ऊपर चढ़ने में मदद दी। फिर हम दोनों बारी बारी उतरे और कदम ब कदम टटोलने के अंदाज में गांधी मैदान के छतनावर दरख्तों के अंधेरे साए में आगे बढ़ने लगे। इस बार हम मैदान का आखिरी सिरा आने के बाद बैरूनी दीवार पर चढ़े और बाआसानी दूसरी तरफ उतर गए। बाहर सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटे की हुक्मरानी थी। हम तेज तेज कदमों से थाने से दूर होने की कोशिश कर रहे थे। मुझे जहीर की हाजिर दिमागी पर रश्क आ रहा था। पुलिस की वर्दी की वजह से हम कम से कम आम लोगों की नजरों में मशकूक होने से बच गए थे। रास्ते और मंजिल के तायुन के लिए अब मैं मुकम्मल तौर पर जहीर पर इन्हिसार करने पर मजबूर था। मुझे खुशी और इत्मीनान ये था कि वो ठीक ठाक और खासा चाको चौबंद दिखाई दे रहा है, वरना उसे थाने से रिहा करवाने की मंसूबाबंदी करते हुए मुझे सबसे ज्यादा परेशानी ये सताती रही थी कि मैं निढाल और तबाहाल लेकिन हट्टे कट्टे बंदे को कैसे उठाकर थाने की दीवार फांदूंगा। कुछ ही देर में हम दोनों तंग गलियों में घुस चुके थे। घंटे भर के बाद कई मील फासला तय कर चुके थे। इस दौरान हम रेल की बहुत सी पटड़ियां पार करके एक और गुंजान आबादी में दाखिल हो चुके थे। अब वो ज्यादा मुतमईन नजर आ रहा था। उसने धीमे लेकिन शिकायत भरे लहजे में कहा, भाई अपनी जिंदगी के दुश्मन हो क्या? इतना बड़ा खतरा मोल लेने की जरूरत क्या थी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बचाने के लिए तुम क्यों गर्दन फंसाने आए थे भैया? मैं तुम्हें मौत के मुंह में छोड़कर कैसे चला जाता? मेरी बात सुनकर वो लम्हा भर खामोश रहा। फिर गोया हुआ, थाने में घुसकर कैदी को छुड़ाना ये तो सरासर खुदकुशी की कोशिश थी। मैंने जवाबन धीमे सुरों में गुनगुनाने पर इक्तिफा किया, जब प्यार किया तो डरना क्या? कदरे तवक्कुफ के बाद वो बोला, आपने ये कार्रवाई करके मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। कहीं आप वाकई पाकिस्तानी खुफिया एजेंट तो नहीं हैं? मैंने उसे टालने की कोशिश की। कहा, पहले तो नहीं था लेकिन अब बन गया हूँ, लेकिन मजबूरन, और इसके जिम्मेदार तुम हो। मगर अब मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम्हें जिंदा सलामत छुड़ा लिया, इतना काफी है। उसने प्यार भरे लहजे में कहा, आप कमाल के आदमी हैं भाईजान। मैंने कहा, अच्छा अब ये बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं और अब हमें करना क्या है? वो बोला, मेरा ख्याल है अब आपको कोई खतरा नहीं है। ये टोपी और राइफल मेरे हवाले करें और किसी भी बस या ट्रेन के जरिए बम्बई रवाना हो जाएं। वो बोला, मेरी फिक्र न करें, मैं एक मकसद के तहत यहाँ आया था। अब उसके पूरे होने का कोई इम्कान नहीं तो छुप छुपा कर अपने साथियों के पास अपने वतन वापस चला जाऊंगा। उसके लहजे में बेफिक्री नुमाया थी। मैंने कहा, आज की रात के इस हंगामे के फौरन बाद वहां का रुख करोगे तो मारे जाओगे। सुबह होते ही कयामत बर्पा हो जाएगी। वो बोला, मुझे पता है, लेकिन फिक्र न करें, मैं मामला ठंडा होने के बाद ही वहां का रुख करूंगा। मेरे पास एक महफूज ठिकाना है जहां मैं इत्मीनान से ये वक्त गुजार सकता हूँ। मैंने मुस्तहकम लहजे में कहा, भाई तुम्हें उस महफूज ठिकाने पर मेरे ठहरने की गुंजाइश भी निकालनी पड़ेगी। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। बोला, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैंने कहा, जरा गौर करो, सब समझ में आ जाएगा। सुबह तुम्हारे फरार और संतरियों के हशर नशर का चर्चा होते ही शुक्ला की कमबख्ती आ जाएगी। वो अपनी गर्दन बचाने के लिए क्या क्या जवाज तराशेगा ये तो अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे फरार में बैरूनी मावनत का यकीन होने पर उसे मुझ पर शक गुजरेगा। हो सकता है पंजाब मेल से गर्दन से पकड़कर मुझे लाने का हुक्म भी सादिर हो जाए। मेरा भेद खुलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। फिर वो बआसानी कड़ी से कड़ी जोड़कर हमारे गठजोड़ का पता लगाने में कामयाब हो जाएंगे और एक देशद्रोही के साथ साथ खतरनाक घुसपैठिए की तलाश भी जोर शोर से शुरू हो जाएगी। वो कुछ देर मेरी बात पर गौर करता रहा, फिर कदरे तशवीश आमेज लहजे में बोला, आपकी बात में वजन है। मेरी तरह आपको भी मामला ठंडा पड़ने तक पनाह की जरूरत है।
चलो कोई मसला नहीं, आपका बंदोबस्त भी हो जाएगा। मेरा यार मेरी बात हरगिज नहीं टालेगा। मैंने हैरत से पूछा, आपका यार कौन? वो बोला, वही जिसके पास हमें पनाह हासिल करनी है, बिक्रमजीत सिंह। उनकी जबान से निकलने वाला नाम सुनकर मैं चौंका और मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, सिख? उसने जोश और मुसरत से लबरेज लहजे में कहा, हाँ हाँ सरदार है। मैंने कहा, यार वो तो मुझे पता है, लेकिन क्या हम उस पर एतबार कर सकते हैं? मेरी बात सुनकर वो चौंका, बोला, ओ तुम्हारा मतलब है वो सिख और हम मुसलमान हैं इसलिए? मैंने कहा, हाँ, और ये भी कि अगर उसे पता चल गया कि... उसने मेरी बात काटते हुए कहा, फिक्र न करें, वो मेरे बारे में सब जानता है, यानी ये कि हिंदुस्तानी सरकार मेरे खून की प्यासी है। मुझे उसकी बात सुनकर हैरत हुई। मैंने कहा, फिर भी? वो हंसा, बोला, हाँ फिर भी। दरअसल बात यह है कि वो खुद भी हुकूमत हिंद का छोटा मोटा बागी है, कम से कम इस मुल्क से तो हमदर्दी नहीं रखता। मैंने कहा, यार यकीन नहीं आ रहा, ये कैसे मुमकिन है? वो एक बार फिर हंसा, बोला, मैं सब तफसील से बताऊंगा, अब जरा इस मनहूस वर्दी से जान छुड़ा लूं, सवेरा होने वाला है। उस वक्त हम खुदरौ झाड़ियों, ऊंचे नीचे टीलों से अटे एक मैदान से गुजर रहे थे। मैंने उसके साथ एक छोटे से टीले पर बैठते हुए कहा, और इन राइफलों का क्या करेंगे? उसने वर्दी और टोपी निहायत नफासत से तह करते हुए कहा, ये राइफलें तो हमारा माले गनीमत हैं, हमें कश्मीर में शदीद जरूरत है इनकी। मैंने पूछा, तो क्या इन्हें साथ लेकर जाओगे? वो बोला, नहीं, अभी ये खतरनाक है, इन्हें हम यहीं छुपा कर जाएंगे, बाद में मुनासिब मौका देखकर यहाँ से ले जाऊंगा। मैंने अपने सर से टोपी उतार कर उसके हवाले करते हुए कहा, ठीक है। मेरे देखते ही देखते उसने दोनों राइफलें और पुलिस की वर्दी एक टीले और बड़े से दरख्त के दरमियान मौजूद छोटी सी कुदरती सुरंग में खासा अंदर धकेल कर खुश्क झाड़ियों और पत्तों से ढांप दिया। उसके साथ ही उसने निशानी के तौर पर 3 बड़े बड़े पत्थर उस दरख्त की जड़ों के पास जमा दिए। उसने मुतमईन लहजे में कहा, काम हो गया, चलो। मैंने पूछा, कहाँ चलें? जवाब देने के बजाय उसने मेरा हाथ थामा और झाड़ियों की एक बाड़ की तरफ बढ़ गया। हमने 10 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि अचानक मंजर बदल गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।